of energy. Number one is electrical energy, and number two is a chemical energy. So we can convert electrical energy to chemical one or chemical energy to electrical one. And for this conversion, we need a device. This conversion isn't occurs suddenly or automatically. For this, we need a device, and electrochemical cell is the device which converts electrical energy into chemical energy, or at the same time, chemical energy into electrical energy. The best example of this is nothing but the battery in our mobile. मोबाइल की बैटरी उसी तरीके से काम करती है. हम जब रिचार्ज करना है तो रिचार्ज पर लगा देते हैं, बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाती है, और जब हम यूज कर रहे हो तो वही बैटरी हम लोग यूज करते हैं. सो हमारे मोबाइल के अंदर का जो बैटरी है वो उसी तरीके से उसे रिवर्सिबल बैटरी भी कहा जा सकता है. दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो हमारे मोबाइल का बैटरी रिचार्ज किया जा सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर की जाती है, और हमें जब यूज करना है तो केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट की जाती है और हम लोग यूज करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर. वी हैव सीन दैट electrochemical cells are of two types, that is, you can say galvanic cell and electrolytic cell. Galvanic cell converts chemical energy into electrical one, and electrolytic cell converts electrical energy to chemical one. हमारे मोबाइल का बैटरी रिवर्सिबल है, तो उसके अंदर दोनों भी फंक्शन एट अ टाइम होते हैं. बट हम लोग कुछ पहले जमाने की बात करते हैं जहाँ पे यूज एंड थ्रो के सेल्स यूज करते थे. वो गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर एक बार उनके अंदर के केमिकल्स खत्म हो जाते हैं या केमिकल डिकम्पोज हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, तो वो सेल हमें फेंक देना पड़ता है. Or that is nothing but the galvanic cell. Nowadays, as of now, we have more advanced and modern cells, which works a bit differently. And as I stated here, almost 30 to 40 years back, some scientists discovered a lithium-ion battery, which has a lot of impact over these mobiles and laptop. So, दुनिया भर के जितने सारे लैपटॉप और मोबाइल है उसके अंदर लिथियम-आयन बैटरी ही यूज होता है. और वही बैटरी का अलग अलग पावर होता है, अलग अलग मिली एम्पियर का पावर होता है बैटरी का, अच्छी तरह जानते हैं. बट हम कौन सा भी सेल क्यों ना ले, हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करें, हम लोग इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, कि दोनों सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है, बिकॉज वी आर हियर इन केमिस्ट्री, वी आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट दिस पार्ट. Whatever the cell it may be, that may be you can say electrolytic cell, that may be a galvanic cell, but in both of the cell, the common reaction which occurs is nothing but you can say redox reaction. And redox reaction is a combination of oxidation and reduction. Redox reaction is a combination of oxidation and reduction. And we know very well, loss of electron is called as oxidation, and gain of electron is called a reduction process. And loss of electron and gain of electron is always a simultaneous process. Loss of electron and gain of electron is always a simultaneous process. And that's why the reaction is called as a redox reaction. So redox reaction is an oxidation reduction simultaneous, and that is nothing but the redox reaction, which is a theme of this chapter, central theme of this chapter. Furthermore, here in the chapter also we have discussed conductance. So first definition we have discussed here in the chapter is nothing but the conductance. So we clear right here? Conductance, and that is denoted by G. So number one we are saying G. मतलब जैसे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सेकंड जो हमने देखा था दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस. सो जैसा रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I अपॉन V, ये हमने देखा. और कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन R, दैट इज रेजिस्टेंस. ये फार्मूला हमने देखा हुआ है. एज वेल एज कंडक्टेंस के बारे में ये भी देखा हमने, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, और उसे सॉल्व करते तो G इज इक्वल टू K A अपॉन L, ये भी हमने देखा. So resistance उसी तरीके से होता है, resistance is directly proportional to length of wire inversely proportional to cross sectional area. इसे सॉल्व करते तो resistance is equal to rho L upon A, ये हम लोगों को मिल जाता है. इसके अंदर हम ये ले सकते हैं कि rho R is equal to rho, और यहाँ पे ले सकते हैं G is equal to K. This K is nothing but the conductivity, and this rho is nothing but the resistivity. So this is the third definition, and this is you can say fourth definition we are saying. So पहला definition देखा हमने conductance. This is nothing but the charge transfer is called as conduction from one point to another point. Then this conductance is 1 upon resistance. Yeah, you can say conductance is directly proportional to cross-sectional area of the wire and inversely proportional to length of wire. और हम लोग solve कर सकते हैं, and conductance finally get converted to conductivity. Conductance is different term denoted by G, and conductivity is a different term denoted by K. So conductance of unit cube material is called as conductivity. उसी तरीके से resistance of unit cube material called as resistivity. So
फोर डेफिनेशन यहाँ पे हमारे क्लियर हो जाते हैं जो हमने वहां पे इसके अंदर डिस्कस किए थे। व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। फर्दरमोर हमने ये देखा कि केमिस्ट्री के अंदर terms are not that much suitable, and that's why we need to go ahead with some another concept in college, molar conductivity. So chemistry के अंदर हमने देखा nothing but you can say four, that is molar conductivity, and that is denoted by lambda. So this lambda is nothing but the molar conductivity, or molar conductivity देखा, molar conductivity is equal to K upon C is the definition of Piercing, और mathematically देखा lambda is equal to K 1000 K upon C. ये है जो हम लोग मैथमेटिकली यूज करेंगे in order to solve the numericals. ये हमने कल के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। This is the molar conductivity. Molar conductivity is conductivity divided by the concentration. But there is a relation between concentration and volume, and by using this relation we can say molar conductivity is equal to 1000 K upon C. इसके अंदर वापस देखा हमने कि substances, this is the molar conductance of 1 mole of solution. मतलब उसे theoretical definition ये देखा हमने कि whenever 1 mole of substance is dissolved in 1 liter of water, it becomes 1 mole of solution. And whatever the conductance of that solution is called, you can say molar conductivity, because it is a 1 molar solution. So 1 molar होता क्या है? 1 mole of electrolyte or a substance put into 1 liter of water. That is called as 1 molar concentration. And उसका जो conductance होगा, that is called as molar conductance. So conductance of 1 mole of substance or 1 molar solution of the substance is called as molar conductivity. मैथमेटिकल डेफिनेशन है K अपॉन C, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 1000 K अपॉन C ये है, और थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऐसा है द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन of a given substance dissolved in 1 liter of water in which 2 electrodes are dipped which are sufficient or which cover all the solutions, and the conductance of that solution is called 1 molar conductance. So that is what we have seen here, molar conductance. So chemistry के अंदर ये टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिजिक्स के अंदर आप देखते हो, और दिस इज द टर्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा मोलर कंडक्टेंस, जो लैम्डा है और इस तरीके से निकले। इसके अंदर हमने ये देखा कि सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज यू कैन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड दूसरा देखा हमने इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है शुगर वगैरह, दिस सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आता है सारे एसिड बेस एंड सॉल्ट व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। इसके अंदर वापस दो आते हैं, दैट इज यू कैन से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नथिंग बट द वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों का जो मोलर कंडक्टेंस है, इसका जो होगा दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा नॉट, और इसका जो होगा दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा, एंड अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस k into root c. This is the relation between molar conductivity and maximum molar conductivity according to Kohlrausch law. So जिसके अंदर this is molar conductivity, this is maximum molar conductivity, which is shown in case of strong electrolyte. Weak electrolyte do not dissociate completely. A is a constant depend upon the nature of substance, and root C is the concentration of that substance. अभी देखिएगा ये क्यों लाना पड़ता है, ये टर्म्स हमें क्यों लाने पड़ते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब है 1 लीटर पानी के अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमने डिसॉल्व किया है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पानी के अंदर डिसोसिएट होता है, कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस करता है, और वो कैटायंस एंड एनायंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एंड चार्ज ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। स्टार्टिंग में देखते हैं हम लोग कि कंडक्टेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और यू कैन से मेटालिक कंडक्टेंस, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या फिर आयोनिक कंडक्टेंस। और उसके हिसाब से अगर देखते हैं हम लोग तो ये देखा कि whenever a charge transfer occur with the help of electrons in a metal, that's called as metallic conductance or electronic conductance, or whenever charge transfer occur with the help of cations or anions, that is called as electrolytic conductance. So this is the type of electrolytic conductance. Electronic conductance, metallic conductance is a part of physics. तो physics में हम वो डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जब आते हैं तो we have to discuss this molar conductance, because केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल्स के साथ डील करते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं, खास करके इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व इनटू द वाटर या फिर सुटेबल सॉल्वेंट्स, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसी कारण से उसका जो कंसंट्रेशन है वो मैटर करेगा। तो 1 मोलर मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इनटू द 1 लीटर ऑफ वाटर मेक्स 1 मोलर सॉल्यूशन, और उसका जो कंडक्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट द मोलर कंडक्टेंस। और यहाँ पे कंडक्टेंस होता किसके कारण है, कैटायंस एंड एनायंस। हमारा जो सॉल्यूट हमने पुट किया था
वाटर के अंदर वो जो कैटायंस और एनायंस पैदा करता है उसके कारण वो कंडक्टेंस होता है। तो उसके अंदर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर शुगर जैसे सब्सटेंसेस आते हैं। अभी शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व तो होता है लेकिन डिसोसिएट नहीं होता है। देखिए देयर इज अ राइट डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएट एंड डिसॉल्व। शुगर डिसॉल्व होता है बट डिसोसिएट नहीं होता। डिसोसिएट होने का मतलब है कैटायंस एंड एनायंस सेपरेट। तो अभी अगर मैं NaCl की बात करता हूँ, सी दिस इज द NaCl. NaCl dissociate to produce Na plus plus Cl minus. So this process is called as a dissociation. तो हम सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट डिसोशिएट भी होता है और डिसॉल्व भी होता है। हम शुगर की बात करेंगे, शुगर ओनली डिसॉल्व होता है, डिसोशिएट नहीं होता। मतलब शुगर का मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होता है, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होता है कैटायंस एनायंस में, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which do not dissociate in aqueous solution to produce cations and anions. These substances do not produce cations and anions in aqueous solution. These are the substances which produces cations and anions into the aqueous solution, and these substances are all acid, all base, and all salts. Comes under this category of electrolytes. इसके अंदर भी दो कैटेगरी होते हैं, strong electrolytes and weak electrolytes. हमने देखा strong electrolyte dissociate complete and weak electrolyte dissociate partial. मतलब ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सारे सॉल्ट इसमें अंदर। ये का अगर हम एक मोल लेंगे तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट। मानो आपको डैड ने कभी पैकेट मनी दिया, आप कॉलेज जाओगे और कॉलेज के लिए आपको अगर मतलब मानो कि 100 रुपए का पैकेट मनी दिया और आप जब एट द एंड ऑफ द डे आप घर आते हो तो पूरा का पूरा 100 रुपए आपने खर्च किया, कंप्लीट आपने खर्च किया, कंप्लीट एक्सपेंसेस किया। जितना है उतना डिसोसिएट होता है, कंप्लीट डिसोसिएट होता है, सारे के सारे मोल्स डिसोसिएट होते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर हमने जितने मोल लिए उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट, बहुत कम पार्ट डिसोसिएट होता है। मानो हमारे पास अगर 1 मोल है तो 0.01 मोल डिसोसिएट। इसका मतलब है हमारे पास 1000 रुपया तो उसमें से 1 रुपया 2 रुपया खर्च होंगे, बाकी नहीं होंगे। 100 रुपए आपको दिए थे, 100 में से आपने सिर्फ 10 रुपया खर्च करे, 90 रुपीज वापस आपने घर में लेके आए। तो 100 के सामने 10, उस तरीके से बहुत छोटा अमाउंट। अगर मानो आपने 1 ही रुपया खर्च किया बस तो और भी छोटा होता है। तो ये उसी तरीके से है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट मतलब दे डिसोसिएट पार्शियली, बहुत कम अमाउंट उनका डिसोसिएट होता है, उनका कम ज्यादा अमाउंट डिसोसिएट होता है। अब इसका एक मजा देखिएगा, हमने मानो 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पुट किया 1 मोल और दूसरा कंटेनर लिया उसके अंदर हमने इसका लिया 1 मोल। ओके, तो देखिए कि इसके अंदर, सो दिस इज द कंटेनर, इसके अंदर हमने 1 मोल लिया इसका, यहाँ पे हमने दूसरा कंटेनर लिया और इसके अंदर हमने 1 मोल लिया इसका। So this is a weak electrolyte put in this one, a strong electrolyte put in this one. Weak electrolyte case में see this is CH3COOH. Dissociate produce CH3COO minus plus H plus. Okay. और इसकी बात करते तो NaCl, NaCl ये है और ये यहाँ पे। तो आप देखिएगा इसके अंदर 1 लीटर वाटर है, इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर है। इस 1 लीटर में हमने 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड पुट कर दिया, इसके अंदर हमने 1 मोल ऑफ NaCl पुट कर दिया। अभी NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट कंप्लीटली, तो हम उसका 1 मोल डिसोसिएट करेंगे तो 1 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं 1 मोल प्रोड्यूसेस 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। अभी इसका 1 मोल इसके 2 तैयार करता है, तो मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय 2 इतने आयंस मिलेंगे आपको, इतने आयंस मिलेंगे NaCl के इसके अंदर। तो ये जो 1 लीटर ऑफ वाटर है इसके अंदर 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों? क्योंकि इसके आगे 1 है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल तैयार करता है, इसका 1 मोल तैयार करता है, मतलब डबल मिलता है। तो NaCl का 1 मोल मतलब 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, डबल मतलब ट्वाइस ऑफ दिस पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। तो इसके अंदर एक्चुअली कैटायन जो होंगे 2 into 6.022 into 10⁻23 कैटायंस इसके अंदर, कैटायंस एनायंस प्रेजेंट। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो आउट ऑफ 1 मोल, देखिए डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो का मतलब ये होता है स्मॉल पार्शियल अमाउंट डिसोसिएट होता है, और यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएट होता है। ये भी याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन में डबल हेडेड एरो रिवर्सिबल के जैसा दिखेगा तो इसका जैसा भी नहीं रिवर्सिबल होता है, वैसा इसका ये मतलब कि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और सिंगल हेडेड एरो होगा तो उसका मतलब है इट इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस डिसोसिएट कंप्लीटली, दिस डिसोसिएट पार्शियली। अगर हम इसका 1 मोल लेंगे तो इसका सिर्फ 0.01 या 0.1 मोल ही मिलेगा। तो इसका मतलब देखिए 0.1 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आयंस इसके अंदर मिलेंगे।
तो इसका मतलब है इसके अंदर बहुत कम, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम आयंस मिलेंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा आयंस मिलेंगे, बहुत ज्यादा आयंस मिलेंगे। सो ये जो दिखाएगा वो है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, और ये जो दिखाएगा दैट इज लैम्डा नॉट व्हिच इज कॉल्ड एज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इज दिस। इससे ज्यादा दिखाई नहीं सकता। मतलब इसका एक दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि आपको डैड में मानो 100 रुपए दिए थे एज अ पॉकेट मनी, तो आप जाके 100 ही खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हाँ, अलग कैसे अगर आपका कहीं वहां पे दोस्त से पैसे लेके आप खर्च कर सकते हो, या किसी से लेन करके आप पैसा खर्च कर सकते हो, या फिर आप उधार रख सकते हो, कैंटीन वाले को बोल सकते हो यार मैं अगले हफ्ते आपको दे दूंगा, वो नहीं कंसिडर करता। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपया है तो आप 100 ही मैक्स खर्च कर सकते हो। इसके अंदर मैक्स आयन 6.022 into 10 into 10 raised to 23 मल्टीप्लाई बाय 2-3 जितने आयंस पैदा करता है उतना हो, उतने आयंस मैक्स। और वो जो आयंस है वो जो भी कंडक्टेंस दिखाएंगे दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम कंडक्टेंस डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट। इट इज अ मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। व्हेreas वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत स्मॉल डिसोसिएशन होता है, एंड दैट्स व्हाई it will having small ions, very small number of ions, and it will show that is the conductance by that ions only, मतलब that is the molar conductivity. So molar conductivity strong electrolyte का अलग होता है और weak electrolyte का अलग होता है। तो strong electrolyte का is directly proportional to ions, वो तो हम मेजर कर सकते हैं। इसका हम मेजर नहीं कर सकते। इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा है कि इसके 1 मोल में से 0.1 मोल 1 लीटर में डिसोसिएट होता है। तो अगर इसका वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं, वाटर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, 2 लीटर करते हैं, 3 लीटर करते हैं, 4 लीटर करते हैं, तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। 1 लीटर के अंदर 0.1, 2 लीटर के अंदर 0.2, 3 लीटर के अंदर 0.3 ऐसा बढ़ता है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, दो concentration remain the same because number of moles per liter ये concentration होता है। Though the concentration remain the same, but whatever the volume is given, number of moles increases and that's why conductivity also increases. So here molar conductivity is affected by the dilution, that is by the volume, or here it is not affected because चाहे आपके पास 1 लीटर वाटर हो चाहे 2 लीटर वाटर हो, पूरा का पूरा डिसोसिएट होने वाला है। So its molar conductivity is not affected by the volume, but इसका molar conductivity is affected by the volume. हाँ, conductivity remains unaffected. Conductivity remains unaffected, but molar conductivity is affected, and that's why it matters. Weak electrolyte के केस में there should have the relation between degree of dissociation. ये जो सब्सटेंस दिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, दैट रिलेशन हैज टू बी गिवन। एंड यही पे कोलरॉस नाम का एक साइंटिस्ट आता है। यही प्रॉब्लम है कि यार इसका डिसोसिएशन अलग होता है, इसका डिसोसिएशन अलग होता है, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी अलग है, इसका मोलर कंडक्टिविटी अलग है, तो कैसा कैलकुलेट करेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी? और इसी के लिए हमारे सामने जो आता है वो है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ जो लॉ देता है वो ये है, हमने देखा that is lambda is equal to lambda naught minus a into root c, जिसके अंदर this is nothing but the molar conductivity, this is nothing but the maximum molar conductivity, a is the constant depend upon the nature of substance, and root c is the concentration, c is the concentration का root यहाँ पे दिया जाता है, how they are related with each। ये कोलरॉस लॉ यहाँ भी इसके अंदर आपके आ जाता है। कोलरॉस लॉ डिफाइन भी होता है एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं। so let's have this कोलरॉस लॉ and its applications। So this is the scientist which is called as Kohlrausch, and this Kohlrausch law is there, जो law आपको पूछा जाता है। अब देखिएगा अगर हम NaCl की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब ये NaCl डिसोसिएट क्या होता है टू प्रोड्यूस Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इसके अंदर होगा क्या, दिस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज नथिंग बट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। So it's very important. This is one of the application of Kohlrausch law। तो पहला समझिए NaCl नाम का सब्सटेंस, उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा? तो NaCl सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस करता है? Na प्लस एंड Cl माइनस। सो एक्चुअल हम जब NaCl पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस Na प्लस एंड Cl माइनस, और कंडक्टेंस जो दिखाएगा वो Na प्लस और Cl माइनस दिखाता है। So the conductance due to Na plus ions and molar conductance due to Cl minus ions, this sum total is nothing but the molar conductivity of NaCl, and this is according to the Kohlrausch law। So if we have to calculate the molar conductivity of any of the substance, then the molar sum total of molar conductivities of cations and anions is nothing but the molar conductivity of that substance। So simply ऐसा भी कर सकते हैं, molar conductivity of acetic acid, let's have another example, molar conductivity of acetic acid, तो acetic acid produces that is CH3CO minus plus
H plus. So this you can say molar conductivity of acetic acid. So acid produces acetate ions and H plus ions. So sum total of their molar conductivity is nothing but the molar conductivity of acetic acid. This is the one of the application of Colros law. दूसरा एप्लीकेशन अभी देखिए मैं आपको कोलरॉस लॉ उल्टा सिखा रहा हूं, पहले उसके एप्लीकेशन बता रहा हूं और फिर उसके बाद उसका लॉ एक्चुअली बता रहा हूं। अब देखिए हमें एसिडिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। हमारे पास मानो वी हैव द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, वी हैव द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na, वी हैव द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ओके, ये तीन की मोलर कंडक्टिविटी हमें पता है और हमें एसिडिक एसिड की निकालनी है। तो आप देखिए कैसा मतलब हाउ द पिक्चर आपको शो होता है, देखिएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl हम ऐड करते हैं इनको, दैट इज यू कैन से। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो होता क्या है देखिए, ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा इस तरीके से देखेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड है दिस CH3CO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ये स्मॉल लिखा जाता है क्योंकि ये कैपिटल लिखा है यहाँ पे, तो ये स्मॉल आता है। तो ये रहा सोडियम एसिटेट का, एसिटेट प्लस Na, इसका क्या आएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस प्लस इसका क्या आएगा, सॉरी ये माइनस करना पड़ेगा इनिशियल का, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस सॉरी ये भी माइनस होगा, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये माइनस करना है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे इस तरीके से। सो वी गॉट दिस वन। सो अब देखिएगा दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होता है कि ये एसिडेट आयंस है और ये प्लस हो गया, दिस Na प्लस Na माइनस कैंसिल, Cl प्लस Cl माइनस कैंसिल, sorry, so what remains here, this is molar conductivity of CH3COO minus plus molar conductivity of H plus. Now ये किसके ions है, is this ions, so we can say this is the molar conductivity of CH3COOH like this one. तो आप देखिएगा this is the second application of Color's law। अगर हमारे पास इन तीन सब्सटेंस का मोलर कंडक्टिविटी पता है जिनके आयंस एसिडिक आयन के जैसे कॉमन है, तो हम फोर्थ सब्सटेंस का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तीनों का हमें पता है, फोर्थ का हम निकाल सकते हैं। तीनों में इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है ताकि इसके आयंस मिले। तो हमने देखिए ये दोनों ऐड कर दिए, इसमें से माइनस कर दिया, तो फाइनली हम लोगों को एसिटिक एसिड के आयंस मिले। सो दीस आर द आयंस ऑफ द एसिटिक एसिड, सो दिस विल बी द molar conductivity of acetic acid. So this is the application of Color's law। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, by using Color's law we can calculate the molar conductivity of any substance। और वो होता क्या है, it is a sum total of molar conductivity of cations and anions for that substance। So sum total of molar conductivity of cations and anions of that substance gives the molar conductivity of that substance। पहला एप्लीकेशन। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है, if we know the molar conductivity of other three substances whose ions are common with four substances, then we can calculate the molar conductivity of fourth one which is unknown to us। ये तीन हमें पता है, फोर्थ हमें पता नहीं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जरूरी कंडीशन क्या है, ये आयंस कॉमन होनी चाहिए। ये तीनों के अंदर जो आयंस है ये इसके अंदर कॉमन होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर नहीं निकाल सकते। किसी भी तीन सब्सटेंस के पता है और कौन से भी फोर्थ सब्सटेंस का निकाल सकते हैं, इट नेवर हैपेंस, इट डजंट हैपेंस। जरूरी कंडीशन ये है ये तीन सब्सटेंसेस और ये फोर्थ तीन में कॉमन आयंस होना जरूरी है। एसिडेट आयंस, H प्लस आयंस, इधर है एसिडेट आयंस, इधर H प्लस आयंस, तभी जाके वो होता है। तो फोर सब्सटेंसेस के आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है, तब जाके आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। अभी आते हैं लॉ के ऊपर। कोलरॉस लॉ आया क्यों, ये तो मैंने यहाँ पे बताया। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये दोनों के लिए कोलरॉस लॉ आ जाता है और गिव द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा लॉ। ओके, ये इसका रिलेशन देता है। तो कोलरॉस लॉ थ्योरेटिकली स्टेटमेंट देता है, थ्योरेटिकली ये स्टेट करता है कि in case of infinite dilution मतलब इसके केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट होगा नहीं होगा, कल ही हमने ग्राफ देखा। इसका डिसोसिएशन पार्शियल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन पार्शियल होता है, ये पूरी तरह से कभी डिसोसिएट नहीं होगा। अगर इसका डिसोसिएशन पार्शियल होता है तो ये चलता जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर और पानी डालो, 1 लीटर के अंदर 0.1 डिसोसिएट होता है ना। सो सपोज 1 लीटर के अंदर 0.1 होता है, 2 लीटर के अंदर 0.2 होगा, 3 लीटर के अंदर 0.3 होगा, ऐसा करते करते चलेगा, वो इंफिनिटी तक चला जाएगा। When we reach dilution is infinite, then
इट डिसोशिएट कंप्लीट, और इन्फिनिटी डाइल्यूशन तो हो नहीं सकता, तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो नहीं सकता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। सो कोलरॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोलरॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसको एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। और कोलरॉस क्या स्टेट करता है फिर, इन केस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन, मैक्स डाइल्यूशन, इन केस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन, cations and anions of the electrolyte migrate independently. Conductance कैसा होगा, these ions should migrate independently. At infinite dilution, cations and anions migrate independently, मतलब irrespective of its coion, irrespective of coion, मतलब सोडियम नहीं देखेगा कि Cl मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Cl नहीं देखेगा कि सोडियम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंपटीशन का जमाना है भाई, है ना। तो सोडियम अपनी तरीके से मूव करेगा, क्लोरीन अपनी तरीके से मूव करेगा, दोनों अपनी तरह से मूव करके कंडक्टेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द कोलरॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, cations and anions of the electrolytes migrate independently. Cations and anions of the electrolyte migrate independently and contributes to the maximum molar conductivity. Is called as your कोलरॉस लॉ। तो कोलरॉस लॉ ने ये सॉल्यूशन दिया। कोलरॉस लॉ लाना क्यों पड़ता है? Because of strong electrolytes and weak electrolytes, basically weak electrolytes के लिए ही एप्लीकेबल है, बिकॉज उनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, और फिर उनका मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कैसा निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस, तो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, the cations and anions of the substance or electrolyte migrate independently irrespective of its coions and contributes to the total molar conductivity. It's called as your Kohlrausch law. Statement is given into the book, read it, understand it, and you can prepare it. That is called as a Kohlrausch law. Clear with this? So that is what we have Kohlrausch. Now furthermore, we have to bit more ahead. Kohlrausch law again depends upon the degree of dissociation. So there is a relation between degree of dissociation and molar conductivity. So let's move to that. Degree of dissociation and molar conductivity. Degree of dissociation, that is alpha, and we have molar conductivity, that is lambda. Okay. तो हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैं आपको दे रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नोटेड बाय अल्फा। सो अल्फा इज अ नोटेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमने 11th स्टैंडर्ड के केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसका डेफिनेशन भी है, उसका फार्मूला भी। मैं फार्मूला देना चाहूंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन total number of moles taken. Big letter. Number of moles dissociated upon total number of moles taken. ये फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और उसका डेफिनेशन भी ऐसा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, सी वी आर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में we have acetic acid CH3COH, we have NH4OH, there are many weak electrolytes. अभी इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानो 0.01 है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.02 होता है, अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होता है, कंप्लीट, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पार्शियल डिसोसिएशन होता है। पार्शियल डजंट मीन कि सबका सेम होगा। एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.02 है, तो इसका डिसोसिएशन 0.01 है। तो ये डिसोसिएट करेंगे तो अलग कंसंट्रेशन मिलेगा, ये डिसोसिएट करेंगे तो अलग कंसंट्रेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर सब्सटेंस का डिसोसिएट होने का तरीका अलग है, नंबर अलग है, एंड दैट इज गिवन बाय डिग्री अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हर एक सब्सटेंस अलग अलग मात्रा में डिसोसिएट होता है, अलग अलग मात्रा में डिसोसिएट होता है। सो दिस इज गिवन बाय दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे और उसमें से कितने डिसोसिएट होते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने सब्सटेंस का 1 मोल लिया और उसमें से 0.1 डिसोसिएट हुआ, तो 0.1 अपॉन 1 इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। समझ रहे? हमने मानो 1 मोल लिया और उसमें से 0.02 डिसोसिएट होते हैं, तो दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अभी देखिए मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। Molar conductivity depends upon cations and anions. So we can convert this alpha is equal to lambda upon lambda naught. Alpha is equal to lambda upon lambda naught. वो कैसे? अब देखिए ना, जितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट होंगे that will give a molar conductivity. हमने 1 मोल लिया था,
1 लीटर के अंदर हमने पुट किया, उसका कंडक्टेंस मेजर किया, दैट इज नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट। जितने भी कैटायंस एनायंस प्रोड्यूस करेगा उतना उसका कैटायंस के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका उतना उसका मोलर कंडक्टिविटी। टोटल नंबर ऑफ हमने मोल लिए थे और सारे के सारे डिसोसिएट होते तो दिखाएगा मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। तो इस फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं degree of dissociation is molar conductivity upon maximum moles, क्योंकि molar conductivity depends upon these moles and maximum molar conductivity is of this one। सारे के सारे आपने 100 रुपए लेके गए थे, 100 के 100 खर्च किए, लैम्डा नॉट 100 में से आपने 10 खर्च किए, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी जो आपको बताया गया था। तो इन दैट सेंस यू कैन से degree of dissociation can be calculated by this formula lambda upon lambda naught। So how this molar conductivity and degree of dissociation related each other? So molar conductivity and degree of dissociation are related with each other in this way। समझ रहे हैं आप लोग? So that is what happens the relation between degree of dissociation and molar conductivity। So take the screenshot of this formula or go to the book. This is very important again. That's what we can say. Clear? Okay. Now let's move to next. The measurement of conductivity. Measurement of conductivity. Conductivity is the key. Okay. Sorry. So measurement of the conductivity. तो अब याद रखिएगा measurement of conductivity. K is the conductivity, G is the conductance, K is the conductivity, lambda is the molar conductivity। हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए वी नीड अ कंडक्टिविटी सेल। तो हमारे पास क्या होता है? कंडक्टिविटी सेल होता है। नंबर 1 ए इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी सेल। सो देयर इज अ कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है देखिएगा। सो वी हैव द डायग्राम। ओके, सी दिस इज द कंडक्टिविटी सेल। नाउ कंडक्टिविटी सेल एक इस तरीके का असेंबली है जो यहाँ पे दिखाई देता है आपको, लाइक दिस। ये इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है और ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है जिसके अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। These are 2 electrodes which are kept 1 centimeter apart from each other, and these are the platinum plate attached at below, having unit surface area। ये जो platinum plate है उनका unit surface area है, they are kept 1 centimeter apart from each other and they are connected to external circuit। These assemblies put into the another container containing the solution। तो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन लिया जाता है जिसका कंडक्टिविटी मेजर करना है, वो इसके अंदर लिया जाता है। ओके, सो देखिए जिस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी हमें मेजर करना है वो सॉल्यूशन इस कंटेनर के अंदर ले जाता है जिसके अंदर एक कंडक्टिविटी सेल बनाया जाता है। अभी कंडक्टिविटी सेल स्टैंडर्ड सेल होता है। ओके, ये सेल में होता क्या है कि ये ग्लास ट्यूब होता है। ग्लास ट्यूब में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम फिक्स किए जाते हैं एंड यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर वाला जो एरिया है, ऐसे 2 प्लैटिनम प्लेट उसके नीचे अटैच किए जाते हैं which are acting as electrode and this is the wire which is connected to external circuit। और ये सेल कंटेनर के अंदर डीप किया जाता है जिसका हमें कंडक्टेंस मेजर करना है, ये कंडक्टिविटी मेजर करना है। अभी हम एक बेसिक फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज कंडक्टेंस? व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज G and G is directly proportional to cross area and inversely proportional to length of wire। we have ये फॉर्मूला हमने पहले देखा है, कंडक्टेंस इस तरीके से मेजर किया जाता है। इसे सॉल्व करते हैं तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K into A upon L। अभी K इस तरफ लेके जाता हूं, G इस तरफ लेके आऊंगा तो देयर विल K इज इक्वल टू G into L upon A। ये इस तरफ जाएगा ना तो L upon A बनेगा, याद रखिएगा L upon A। बट हम ये जानते हैं कि G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, ये इक्वेशन इधर लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले। सी कंडक्टेंस इज गिवन एट G is directly proportional to cross sectional area inversely proportional to length of wire। इसे सॉल्व करते तो G is equal to K A upon L। अभी ये इस तरफ लेके आते हैं, K निकालना है तो K is equal to G L upon A, ऐसा है, समझ रहे हैं आप लोग? अभी इसके अंदर बट G is equal to 1 upon R। G is equal to 1 upon R, तो हम ये यहाँ पे रख सकते हैं। Therefore K is equal to 1 upon R L upon A, ये होता है। Now B से B is equal to L upon A, L upon A। अभी ये है क्या? ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो अब देखिए ये दोनों का लेंथ कितना रखा हमने 1 सेंटीमीटर रखा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना लिया हमने यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, उस हिसाब से 1 बन गया। इसका मतलब है
L indicates the length between the electrodes and A is a cross sectional area of the electrodes. So ये हम जब सेल बनाते हैं तो हर सेल का अपना फिक्स होता है. अगर हम परफेक्टली 1 1 लेंगे तो हमारा सेल कांस्टेंट कॉल्ड एज B, जो इलेक्ट्रोड का लेंथ बताता है between the length and this is the cross sectional area and this is nothing but the cell constant. वो हर सेल का. अभी हम बता दें कि हमारे सामने यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो अपना अपना सेल बना दे, तो सबका ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है. भले हमने 1 सेंटीमीटर कोशिश की होगी, लेकिन ह्यूमनली मैन्युअली मिस्टेक्स होते हैं और थोड़ा बहुत डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है. तो जो भी लेंथ होगा वो और जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ये बताया हमारा सेल कांस्टेंट दैट इज B. तो ये B हम लोग इसके वजह दे सकते हैं. तो therefore K is equal to B upon R. This is the formula. This is the formula by which we calculate the conductivity or by which we read the conductivity. तो conductivity अगर हमें मेजर करना है तो we need B upon R. B is a cell constant, R is a resistance. तो किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो we need to know the resistance. और B is a cell constant. Cell constant is L upon E. ये हम जब सेल बनाते हैं उस टाइम उसका लेंथ कितना दिया हमने इलेक्ट्रोड का बीच का और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कितना लिया वो यहाँ पे डाल देंगे तो दैट बिकम्स सेल कांस्टेंट. एक बार बनाने के बाद वो फिक्स होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिक्स करते हैं. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिक्स करते हैं तो ये डिस्टेंस नहीं बदलता है. तो सेल एक ही बार बनाना पड़ता है और उसका जो भी सेल कांस्टेंट है वो वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है तो हमें हमेशा B मिलेगा, B कांस्टेंट मिलेगा. बट अगर हमें K मेजर करना है, कंडक्टिविटी मेजर करना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो हमें रेजिस्टेंस की जरूरत है और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज किया जाता है. कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो अपने फिजिक्स में यूज किया था. सो लेट हैव द डायग्राम ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. तो दिस इज वायर AB. दिस इज वायर AB which is stretched on the scale. This is wire A and B. This wire has 2 arms. This is arm A and this is arm B. So this is arm B which is having a known resistance. So be clear now, wire AB stretched on the scale. This is arm B having known resistance and here this conductivity cell is taken. So here is the conductivity cell. दिखाई दे रहा है आपको? Sorry. ये डायग्राम यहाँ पे देता हूँ मैं थोड़ा सा. यहाँ पे देखो. So this is the wire AB wire. This is wire A and this is B. And here is the arm A and here is the arm B. This is the known resistance. ये आपको known resistance है और ये unknown resistance यहाँ पे. ये सेल यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है. Suppose this is the cell. Small diagram निकाला मैंने यहाँ पे जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं. And these are connected to this wire, side arm A or side arm B, and here is, you can say, alternating current like this. And here is the galvanometer, or you can say detector, and here is the jockey which slides over wire AB. ये एक्सपेरिमेंट आपने फिजिक्स में किया है. This is called as व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपने देखा है, फिजिक्स में देखा हुआ. सो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है? There is a wire AB of uniform diameter which is stretched on the scale. It has 2 arms, arm A, arm B. Arm A is connected to the conductivity cell. मतलब ये सेल यहाँ पे रखा हुआ है, यही सेल यहाँ पे रखा हुआ है. इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टिविटी हमें मेजर करना है. This is the known resistance. This is the wire AB जिसके ऊपर एक गैल्वेनोमीटर है या फिर डिटेक्टर है जिसे हम लोग वोल्टमीटर कह सकते हैं. And this is jockey which slides over wire EB. And suppose हमने यहाँ पे C नाम का पॉइंट हाइलाइट कर जहाँ पे यहाँ पे shows the null deflection, zero deflection. So according to principle of Wheatstone bridge principle, this known resistance Rx is directly proportional to length of wire BC. Okay, and this resistance of cell is directly proportional to length of wire AC. So length of wire AC and this is length of wire BC. So this is directly proportional to this one and this length is directly proportional to this cell. So अगर हमें ये सेल का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सेल अपॉन रेजिस्टेंस नोन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर AC अपॉन लेंथ ऑफ वायर BC. सो रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू ये सब लेंगे तो लेंथ AC अपॉन लेंथ BC इनटू Rx. This is the way how we measure the resistance. To begin again, we have to measure conductivity of the cell. Or in order to measure the conductivity, we should know the resistance because we know that is the cell constant. If we know the resistance, we know the conductivity. In order to measure the resistance, we need a Wheatstone bridge principle, which is this one.
Using Wheatstone bridge principle, there are two, मतलब using 2 arms and using 4 arms. Wheatstone bridge principle दो होते हैं, 2 arm वाले और 4 arm. यहाँ पे 2 arm वाला लिया. और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि this is the wire AB stretch of the uniform scale. Then there is, you can say, known resistance, and this is the unknown resistance to which this cell is connected. Galvanometer over detector. Here is the jockey which slides over wire AB. So wire is sliding in such a way that it shows a null deflection. Null deflection means this resistance is cancelled by this one. We got this point C. So this resistance of this cell is directly proportional to length of wire AC, and resistance of this node which is directly proportional to length of wire the CB or BC, and that is what we are seeing. So we comes to the resistance of the cell. एक बार हमने R यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, वो यहाँ पे रख देंगे. We can measure the conductivity of the cell. So this is the way how we measure the conductivity of the cell. So in order to measure the conductivity of the cell, we need to have the conductivity cell. ये conductivity cell है, ये Wheatstone bridge principle है. Conductivity cell हमें फिक्स करना पड़ता है, जिससे हम लोग को B मिलेगा. ये B cell constant L upon A. So here is the B which is called as cell constant. तो एक बार हमें cell constant मिल जाता है तो फिर बचता है resistance. और resistance मेजर करने के हम लोग Wheatstone bridge principle यूज करते हैं, जिससे हम लोग ये प्रिंसिपल जो अपने फिजिक्स में देखा हुआ है, इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं. वो रेजिस्टेंस यहाँ पे रख देंगे तो we can measure the conductivity of the cell. Clear with this? So that is what we can see here. So this is the measurement of conductivity cell. Clear with this? So that's all for today. Also, whatever that we have got it, just read it. If you need to figure it out, please let me know. Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye.